Hello students, good morning. Myself Anju Thakur and I am taking your English subject. Today we are going to study a new poem of Unit 3, 3.1, heading is Tartary. Now first we will see the summary of this poem, then I will teach you the poem. See, Tartary, written by Walter de la Mare, is about an imagined kingdom called Tartary. The poet, like a child, imagines himself as the lord of this kingdom, which is full of pleasure and beauty. It is a dreamy presentation of the riches of the world. He thinks of having a bed of ivory and throne decorated with beaten gold. He wishes to see dancing peacocks in his court, roaring tigers in his forest, and fishes swimming sideways in his pool. He dreams that trumpeters would invite to him every meal by playing harsh sound like a donkey in his courtyard. The evening is time when lamps would shine with red and yellow color. Honey and wine have been used to describe the sweetness and intoxicating mood and ambience. The poet has talked about some musical instruments like harp, flute, and mandolin, which provide the unusual and exotic feelings of extreme joy. The poet imagines himself putting along loose garments richly woven with white, green, and golden beads of pearls. Early in the morning, he would wear a different long garment and carry sharp sword. He imagines the zebras would pull his car through the dark valley of Tartary, his kingdom. He would own all the fruits of his kingdom and be the owner of shining rivers, not only the hills, valleys of Tartary, but also its fishes, stars, pleasant wind, and lakes. A shivering surface would belong to him. He visualizes himself as the owner of the trees laden with lemon like fruits, all the beauties of Tartary. Reading this poem is like a passing through a dream which talks about the possible luxuries and comforts of life. You can see the image over here, that we can see the boy over here, and there are many things like there are musical instruments, we can see the some animals pictures, we can see the cart, some toys, and we can see the own bed and so many things. The boy is in sleep. The word Tartary is nothing but word is imagination, whereby the boy is king of the kingdom and he is enjoying all the luxuries of life. He is enjoys the pleasure and beauty. स्टूडेंट्स, ये एक इमेजिनरी पोएम है. ऑब्वियसली हम रोज़ इमेजिन करते हैं सोते समय कि हमारा खुद का बंगला हो, खुद की गाड़ी हो, हम राजा महाराजा जैसे रहें, 10 लोग मेरे पैर के नीचे रहें, मेरे नीचे काम करने के लिए हो, है ना. ये सब इमेजिनेशन हमारे अंदर बहुत रहती है. सिर्फ इमेजिनेशन, हम रियल लाइफ में इतना जल्दी नहीं कर सकते. उसे पढ़ना पड़ेगा, अपने लाइफ को सक्सेस करना पड़ेगा, फिर हम ये अचीवमेंट्स हमको मिलती हैं. लेकिन इमेजिनेशन एक ऐसा चीज़ है जो आँख बंद करते ही हम अमीर से अमीर, बड़े से बड़े भी बन जाते हैं. किसमें? सिर्फ इमेजिनेशन. ठीक है. तो ये इमेजिन कर रहा है पोएट अपने ड्रीम में, हाँ, नाइट ड्रीम में ये इमेजिन कर रहा है. क्या कर रहा है? ये बॉय है, यहाँ नाइटी पहना हुआ है, बहुत सारे हैं वहाँ पे, टॉयज़ हैं, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एनिमल्स हैं. तो ये सब इमेजिन कर रहा है कि उसकी लाइफ कैसी होगी. तो हम पोएम पढ़ते पढ़ते मैं आपको बताती हूँ कि इसकी लाइफ कैसी है, ये पोएट ने क्या इमेजिन किया. ओके. इफ़ I were a lord of Tartary, myself and me alone. My bed should be of ivory, of beaten gold, of thrones. And in my court should peacocks flaunt, and in my forest tiger haunt. And in my pools great fishes slant, the fishes athwart the sun. See the meanings of Tartary. Tartary, an imaginary land. Ivory, hard white substance of elephant tusk. Throne means
chair of king. Beaten gold means beaten gold in flat thin shape. Flaunt snow of proudly. Haunt का मतलब कम frequently यानी कम fast. Slant move an angle. Athwart मतलब from side to side in slanting direction. तो these are the meanings of given words. See the meanings of this stanza. अगर मैं ये इमेजिन करते हुए मैं बना लॉर्ड ऑफ टर्टरी या इमेजिनेशन का मैं भगवान बन रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, सबसे ये लाइफ में अकेले रहूँगा और मेरा बेड हाथी के दांतों के बने होंगे. हाँ, और बीटन गोल्ड इन फ्लैट एंड शेप, और जो मेरा बेड है एकदम फ्लैट होना चाहिए. ठीक है. और फॉरेस्ट हॉन्ट यानी कि और मैं शिकार करूँ लोगों का. हाँ, लोग मेरे दरबार में आएँ और ख़ुद मेरे पास चल कर आए, मुझे मेहनत ना करनी पड़े. तो ये सब फर्स्ट स्टांजा का मीनिंग है. सेकंड देखो, इफ़ आई वर अ लॉर्ड ऑफ टर्टरी ट्रम्पेटर्स एवरी डे टू एवरी मील एंड वुड समॉन मी एंड इन माई कोर्टयार्ड ब्रे एंड इन द इवनिंग लैम्प्स वुड शाइन येलो एज हनी रेड एज वाइन while harp and flute and mandolin made music sweet and gay. See the meanings. Trumpeters, one who plays a trumpet यानी कि एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, जो बजा रहा है वो बजाने वाले को हम ट्रम्पेटर्स बोलते हैं, और वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलता है, ट्रम्पेट. सुमोन मीन्स कॉल यानी कि किसी को बुलाना. ब्रे मीन्स मेक अ लाउड हार्श क्राई. ब्रे यानी कि तुरंत फ्रिक्वेंटली किसी को बुलाना. हार्प, flute and mandolin is the name of instrument. Gay means very happy. See the meanings of this stanza. If I were a lord of Tartary, अगर मैं ये बना क्या, जो भगवान बन सकते हैं, इन सब का हेड मैं बनूँ, किंग मैं बनूँ, तो मैं क्या करूँगा, ट्रम्पेटर्स मुझे रोज़ बुलाएंगे खाने पे. वो ट्रम्पेट बजा कर मुझे बुलाएंगे खाने पे. ठीक है. सुमोन यानी कि मुझे बुलाना. और आंगन में रहेंगे सब और सब शाइन करेंगे, लैम्प्स दिए वगैरह बहुत जलेंगे. येलो एज हनी, रेड एज वाइन से भी रेड, हनी से भी येलो, इन सब बस लाइटिंग ही रहे मेरे यहाँ पे. और हार्प, फ्लूट एंड मैंडोलिन मेड म्यूजिकल एंड स्वीट एंड गे, और ये सब म्यूज़िक बजा के मेरी लाइफ को एकदम हैप्पी कर दे. समझ में आया ये स्टांजा. थर्ड, if I were lord of Tartary, I would wear robe of beads, white and gold, green and they would be. The clustered of thick seeds and array should wane the morning star. I would don my robe and scimitar, and zebras 7 should draw my car through Tartary's dark glades. Say the meanings. Robe means a loose garments reaching the ankle. Array यानी before. Wane, a decrease in size. Done, put in clothing. Scimitar, short sword with curved blade. Glades, pent spaces in the forest. इस स्टांजा में उसके कपड़े का डिस्क्रिप्शंस किया गया है. कपड़े कैसे, रोब ऑफ बीड्स यानी कि उसका जो कोट रहेगा वो पूरा लॉन्ग रहना चाहिए, और उसके जो बटन्स रहते हैं, बीच के बटन्स, वो एकदम से शाइन होने चाहिए वो. ठीक है. एंड क्लस्टर्ड थिक एज सीड्स यानी कि जो बटन के सीड्स हैं वो एकदम शाइन होने चाहिए, इकट्ठा. क्लस्टर्ड यानी कि बहुत सारे ग्रुप में होने चाहिए वो उसका कोट का. बिफोर शुड वेन द मॉर्निंग स्टार, आई वुड डन माई रोब एंड स्किमिटास, और सोकर उठने से ही मुझे वो कोट पहनने आना चाहिए. एंड जेब्रा 7 शुड ड्रॉ माई कार, और वो जो उसकी कार है उसके जेब्रा की प्रिंटिंग होनी चाहिए. थ्रू द टर्टरीज डार्क ग्लेड्स मीन्स पेन स्पेसेस इन फॉरेस्ट, और वो फॉरेस्ट में भी ऐसे उसका नाम होना चाहिए और जेब्रा के प्रिंटिंग उसके कार पर होना चाहिए. सी द लास्ट आंसर ऑफ द पोएम. द लॉर्ड ऑफ द फ्रूट्स ऑफ टर्टरी, हर रिवर सिल्वर पेल. लैंड ऑफ द हिल्स ऑफ टर्टरी, ग्लेन, थिकेट, वुड एंड डेल. हर flashing star and seamed breeze, her trembling lake like foamless seas, her bird delighting citron trees in every purple will. अब नेचुरल, इसमें पूरा फॉरेस्ट एरिया का
डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया गया है। उसका जो लैंड है, फ्रूट्स ऑफ टर्टरी, यानी कि जो इमेजिनेशन वो पूरा फ्रूट्स ही रहे सामने। हर रिवर्स सिल्वर पेल, जो रिवर है उसमें क्या होना चाहिए, सिल्वर कलर की शाइन होनी चाहिए। लॉर्ड ऑफ हिल्स ऑफ टर्टरी, और बहुत सारे हिल्स होने चाहिए सामने ही उसके किंगडम के, यहाँ पर ही हिल्स होने चाहिए। ग्लेन थिकेट वुड, ये सारी चीज़ें उस एरिया में होने चाहिए। हर फ्लैशिंग स्टार्स, हस्मीम ब्रीज, और अच्छी अच्छी हवा, ताज़ी हवा होना चाहिए वहाँ। ट्रैवलिंग लेक लाइक अ फोमलेस सीज, और एकदम शांत जो लहर होती है वो समुद्र की लहरें वहाँ पे होनी चाहिए। फोमलेस यानी कि बिना गाज के रहना चाहिए वो। हर बर्ड डिलाइटिंग सिट्रॉन ट्रीज, या सिट्रॉन ट्रीज यानी कि गहरे गहरे पेड़ों पर बर्ड्स की आवाज़ आनी चाहिए। इन अ पर्पल वेल, पर्पल यानी कि सनसेट का टाइम हो तो भी शांत ही हो, और चिड़िया की चहचहाने की आवाज़ होनी चाहिए। तो ये सब इमेजिनेशन ये पोएट करता है अपने ड्रीम नाइट में, और इस तरह से ये पोएम को लिखा गया है। द राइटर इज़ वॉल्टर डी ला मारे। ओके, सो दिस इज़ द पोएम ऑफ टर्टरी। थैंक यू।